वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बनाया। So first and foremost, of course, we are in contact with the government of India. We take the Canadian diplomats' safety very seriously, and we will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations are best when they remain private. Est-ce que vous confirmez qu'on a des diplomates qu'on nous a demandé de quitter? Est-ce que vous pouvez confirmer? As I told you, we are in constant cooperation and dialogue with India. We ask them full cooperation on the investigation on Mr. Najjar, and at the same time, we've been in close contact, continuing to engage on the question of our diplomatic It sounds like you think that there's some way now to stop the expulsion of the Canadian diplomats, but that's 2/3 of the core there. So what impact is that going to have on Canadian citizens and businesses? As I mentioned, we will continue to engage, and it is important that we do so, but as I mentioned many times in many of your questions in the past, it is important that these diplomatic conversations. Do you have any other questions on any other subject? Ok, on a ici. Ok, je vais répondre en français 30 secondes, après je vais pas. Un instant, je vais juste répondre à Christian. Hélène, 30 secondes. On a l'impression que sur l'Inde, vous marchez sur des œufs. Nous sommes dans un moment difficile. Il y a certainement des tensions entre nos gouvernements, mais dans des moments de tension, ce qui est le plus important, c'est de continuer à avoir des gens sur le terrain. Alors, c'est pourquoi nous sommes en conversation avec le gouvernement indien et par conséquent, nous allons aussi travailler sur la protection de nos diplomates. I think if I can add that in English. So, in moments of tensions, because indeed there are tensions between both our government, more than ever it's important that diplomats be on the ground. And that's why we believe in the importance of having a strong diplomatic footprint in India. That being said, we are in ongoing conversations with the Indian government and we will continue to protect them. तो मेलिन जोली है जो कनाडा की शी इज द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर है मेलिन जोली। उसने बोला है कि भारत के साथ जो हमारे ये प्रॉब्लम है, ऐसी वैसी जो प्रॉब्लम है भारत के साथ, हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग ना प्राइवेटली भारत के साथ बात करना चाहेंगे कि हमारे रिश्ते ना बिगड़े, हम अकेले में बात करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया के स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कनेडियंस भी दे रहे हैं मीडिया में, इंडियंस भी दे रहे हैं मीडिया में, और ये डिप्लोमेटिक जो लड़ाई है ये अब हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। इंडिया ने बोल दिया 41 डिप्लोमेट्स को निकलो यहाँ से, निकलो, वरना उनका जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है 10 तारीख तक निकलो, वरना 11 तारीख को उनका डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं रहेगा। डिप्लोमेटिक स्टेटस यानी कि डिप्लोमेट्स को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। कई सारे फायदे होते हैं डिप्लोमेट होने के, आपके बैग चेक नहीं होते, ये सब ना, आप डिप्लोमेटिक कुरियर में निकल जाते हैं आपकी, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। और ये म्यूचुअली मतलब अग्रीड अपॉन स्टेप्स होते हैं कि यार हमारे डिप्लोमेट को आप इज्जत देंगे, आपके डिप्लोमेट को हम इज्जत देंगे, ये सब चलता है। अब कनाडा ये कह रहा है कि यार ये तो दिक्कत हो गई, ये तो परेशानी हो गई, अब हमें इंडिया से प्राइवेट में बात करनी है। लेकिन ये मेलिन जोली जो है ना, मैं इनको यही पूछूंगा कि मैडम आपने अपने प्रधानमंत्री को नहीं बोला था जब उसने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बोला था कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया, और उसके पास प्रूफ भी नहीं था, पर उसने बोल दिया कि भारत ने निज्जर को मरवाया है। अब बोल तो दिया, अब शब्द और बाण ऐसे होते हैं कि एक बार चले जाते हैं ना, फिर वो वापस नहीं आते। यू कांट अनसे समथिंग। एक बार आपने से कर दिया उसको, तो अनसे नहीं कर सकते आप। ये कोई वीडियो नहीं है कि आप पीछे चले गए और बोला कि नहीं पिक्चर 10 मिनट पहले से देख लूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब उसने बोल दिया, अब इसमें या तो जस्टिन ट्रूडो माफी मांगे और पब्लिकली बोले कि हां मैंने बकवास करी थी भाई साहब, ठीक है, मैं जस्टिन ट्रूडो हूं, मेरी आदत है, और या फिर ठंड रखते, क्योंकि यह मामला भारत की तरफ से बंद नहीं होगा। जिसने शुरुआत करी है बंद उसी को करना है। आपने शुरुआत करी, अब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट में बात करनी है। क्या बात करनी है प्राइवेट में? क्या बात करनी है? जब आपको भारत के ऊपर लांछन लगाना था, तोहमत लगानी थी, वो तो आपने पब्लिकली करी, और पब्लिकली भी कैसे? कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने बोला कि भारत ये गलत है, भारत ने हमारा बंदा मरवा दिया। अब आपके पास प्रूफ नहीं है, अब आपका गला सूख गया। मैं तो ये चाहता हूं, मैं कनाडा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे भारत ने बोला है कि कैनेडियंस इंडिया में नहीं आएंगे, उनको वीजा नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से भारतीयों के लिए भी आप कनाडा आना मना करिए। मैं तो चाहता हूं, मैं चाहता हूं पूरा सील कर दो, कोई इंडियन नहीं जाएगा कनाडा,
जो चले गए, जिनको सिटीजनशिप मिल गई, उनका मैटर है। नए तौर पे nobody should go. There should be no movement. We're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. We're taking this extremely seriously, but we're going to continue to engage responsibly and constructively with the government of India. In moments of tensions, because indeed there are tensions between both our government, more than ever it's important that diplomats be on the ground. And that's why we believe in the importance of having a strong diplomatic footprint in India. That being said, we are in ongoing conversations with the Indian government and we will continue to. और ट्रूडो साहब का स्टेटमेंट आया कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट, हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते हम, तो इसका मतलब है कि ये जो आर्म ट्विस्टिंग हुई है वो थोड़ा सा फल तो दे रहा है, बिकॉज नाउ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज फीलिंग लिटिल हीट कि ये जो उन्होंने शुरू किया था ये इतनी आसानी से डाउज आउट होगा नहीं, तो वो उसको फील कर रहे हैं। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि शाम तक आते आते ट्रूडो साहब का ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते, अब जो मैटर था उसको वहीं खत्म कीजिए, अब आगे बढ़िए। मगर ये एक अच्छा इशू इसलिए भी है मुझे, अगर जो इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लग रही है कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं इनको आप सपोर्ट कर रहे हो, इसको आपको बंद करना पड़ेगा या ये डुप्लिसिटी कम करनी पड़ेगी, आपको इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक टाइम है कि इसको ना एक इंस्टेड ऑफ स्कूट एंड शूट करके कि चलो अभी मामला दब गया, बाद में देखेंगे, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसको आप फाइनल सोल्यूशन की तरफ ले जाइए। आई थिंक इंडिया वांट्स टू कीप द पॉट बॉइलिंग, अभी उसको करना नहीं चाहता, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि भैया ये तो अब खत्म करो, खालिस्तान का निपटारा करो तुम, ये नॉनसेंस नहीं चलेगा ज्यादा दिन। गेम तो ट्रूडो साहब ने शुरू किया था, इंडिया अब ये कह रहा है कि ये है गर्दन अभी हाथ में आई, दोबारा आएगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई ये तो गेम है, कभी इंडिया की गर्दन उनके हाथ में आएगी, कभी उनकी गर्दन हमारे हाथ में आएगी। जब आप दो मल्ल लड़ते हैं ना, तो कौन किसकी कब आ जाए कोई पता नहीं होता। बिल्कुल, इट्स अ गेम ऑफ स्किल्स ना। तो अब मुझे लगता है ये जो इनका डिप्लोमेटिक, चूंकि मोदी जी थोड़ा असर्टिव हैं, तो उनका ये है ना कि नहीं अब हम इसको एस्केलेट करेंगे, या तो तुम इन खालिस्तानियों के ऊपर एक्शन, गर्दन छोड़ेंगे नहीं इस वक्त। एग्जैक्टली, ये मतलब खालिस्तान वाला मैटर सॉल्व करो, ये बार मतलब वही कह रहा हूं, एग्जैक्टली वही है एक मैटर, बाकी तो कोई तो ना बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया कनाडा, या कोई और डिस्प्यूट भी नहीं है, अगर देखा जाए तो कोई इसके अलावा डिस्प्यूट भी नहीं है। अगले 10-15 साल तक दोनों देशों के बीच में जीरो मूवमेंट, कोई नहीं जाएगा, तब देखते हैं। इसको जस्टिन ट्रूडो की जो खाज है ना, इसको जो खुजली मचती है बीच बीच में, उसका इलाज है मोदी जी के पास, और मोदी जी उसकी खुजली का पूरा इलाज करेंगे अच्छी तरीके से, मुकम्मल इलाज होगा इसका जस्टिन ट्रूडो का। अब ये कह रहे हैं प्राइवेट में बात करनी है, तो भाई साहब प्राइवेट में बात करनी है तो पब्लिक में बकवास क्यों करी थी, ये तो बता दो।